पढ़ो पढ़ो वहीं से कंटिन्यू। The summary of the seventh chapter is as follows. As described in this chapter, the Supreme Personality of Godhead, appearing in his incarnation as a tortoise, dove deep into the ocean to carry Mandara mountain on his back. At first, the churning of the ocean produced Kalakut poison. Everyone feared this poison, but Lord Shiva satisfied them by drinking it. With the understanding that when the nectar was generated from the churning, they would share it equally, the demigods and the demons brought Vasuki to be used as the rope for the churning rod. By the expert arrangement of the Supreme Personality of Godhead, the demons held the snake near the mouth, whereas the demigods held the tail of the great snake. Then, with great endeavor, they began pulling the snake in both directions. Because the churning rod, Mandara mountain, was very heavy and was not held by any support in the water, it sank into the ocean, and in this way the prowess of both the demons and the demigods was vanquished. The Supreme Personality of Godhead then appeared in the form of a tortoise and supported Mandara mountain on his back. Then the then the churning resumed with great force. As a result of the churning, a huge amount of poison was produced. आगे पढ़ूं मैं? अगला व्यक्ति। The Prajapatis, seeing no one else to save them, approached Lord Shiva and offered him prayers full of truth. Lord Shiva is called Ashutosh because he is very pleased if one is a devotee. Therefore, he easily agreed to drink all the poison generated by the churning. The goddess Durga, Bhavani, the wife of Lord Shiva, was not at all disturbed when Lord Shiva agreed to drink the poison, for she knew Lord Shiva's prowess. Indeed, she expressed her pleasure at this agreement. Then Lord Shiva gathered the devastating poison, which was everywhere. He took it in his hand and drank it. After he drank the poison, his neck became bluish. A small quantity of the poison dropped from his hands to the ground, and it is because of this poison that there are poisonous snakes, scorpions, toxic plants, and other poisonous things in this world. Thank you. Prabhupada never fails to give us some, general knowledge also. Some interesting facts, trivia जिसको हम बोलते हैं। तो ठीक है, फटाफट पढ़ते हैं यहाँ से। कुछ सिलेक्ट वर्ड्स हैं उसको हम पढ़ लेंगे, अदरवाइज फटाफट विल रीड। आगे भावनी के बाद किसका नंबर है? Uh, Shukdev Goswami said, O best of the Kurus, Maharaj Parikshit, the demigods and demons summoned Vasuki, king of the serpents, requesting him to come and promising to give him a share of the nectar. They coiled Vasuki around Mandara mountain as a churning rope, and with great pleasure they endeavored to produce nectar by churning the ocean of milk. The personality of Godhead Ajita grasped the front portion of the snake and then the demigods followed. पढ़ते जाओ यार, फटाफट, The वेट leader मत करो। thought it अरे unwise to नहीं, अल्फाबेट वाइज यार, एक बार हो गया तो अपना पढ़ना है, अगला व्यक्ति पढ़ता जाए, शुड नॉट वेट फॉर प्रॉम्प्टिंग। The, the leaders of the demons thought it unwise to hold the tail, the inauspicious portion of the snake. Instead, they wanted to hold the front, which had been taken by the personality of Godhead and the demigods, because that portion was auspicious and glorious. Thus, the demons, on the plea that they were all highly advanced students for Vedic knowledge and were all famous for their birth and activities, protested that they wanted to hold the front of the snake. मेरी बारी है पढ़ने की। उससे पहले मैं बताऊं, सो यहाँ पर भगवान ने एक ट्रिक प्ले किया। पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, इनका एक और इनकारनेशन है अजीत, वो चले गए फटाफट फ्रंट पोर्शन को पकड़ने के लिए, है ना। और फ्रंट पोर्शन को पकड़ने के बाद जैसे ही वो आए तो डेमी गॉड डीमंस तो वही करेंगे जो अच्छे लोग फॉलो करेंगे। छोटा बच्चा जैसे होता है ना, आप उसको जिसके लिए मना करो वो चीज वो करेगा या पीछे पीछे कॉपी करेगा। तो डीमंस वर लाइक, हाँ हाँ हम भी यही करेंगे, हाँ ये तो गलत है, अरे लोग बात करे, अरे तो बेइज्जती हो जाएगी, जो पूंछ है पूंछ को पकड़ रहे हो, पूंछ इज सो इनऑस्पिशियस, है ना, इतना बेकार चीज है। तो देयरफॉर दे ऑल डिसाइडेड कि हम जा करके फ्रंट को पकड़ेंगे। एंड thus the demons remained silent, opposing the desire of the demigod. Seeing the demons and understanding their motive,
personality of Godhead smiled. He's smiling. Without discussion, he immediately accepted their proposal by grasping the tail of the snake, and the demigods followed him. After thus adjusting how the snake was to be held, the sons of Kashyap, both demigods and demons, began their activities, desiring to get nectar by churning the ocean of milk. मैं पढ़ लेता हूँ फिर, है ना? O son of the Pandu dynasty, when Mandara mountain was thus being used as a churning rod in the ocean of milk, it had no support, and therefore, although held by the strong hands of the demigods and demons, it sank into the water. Because the mountain had been sunk by the strength of Providence, the demigods and demons were disappointed, and their faces seemed to shrivel. Seeing the situation that had been created by the will of the Supreme, the unlimitedly powerful Lord, whose determination is infallible, took the wonderful shape of a tortoise, entered the water, and lifted the great Mandara mountain. When the demons and When the demigods and the demons saw that the Mandara mountain had been lifted, they were enlivened and encouraged to begin churning again. The mountain rested on the back of the great tortoise, which extended for 800,000 miles like a large island. O king, when the demigods and demons, by the strength of their arms, rotated Mandara mountain on the back of the extraordinary tortoise, the tortoise accepted the rolling of the mountain as a means of scratching his body, and thus he felt a pleasing sensation. Thereafter, Lord Vishnu Thereafter, Lord Vishnu entered the demons as the quality of passion, the demigods as the quality of goodness, and Vasuki as the quality of ignorance to encourage them and increase their various types of strength and energy. Manifesting himself with thousands of hands, the Lord then appeared on the summit of Mandara mountain like another great mountain and held Mandara mountain with one hand. In the upper planetary systems, Lord Brahma and Lord Shiva, along with Indra, king of heaven, and other demigods, offered prayers to the Lord and showered flowers upon him. The demigods and the demons worked almost madly for the nectar. Encouraged by the Lord, who was above and below the mountain, and who had entered the demigods, the demons, and Vasuki, and the mountain itself. Because of the strength of the demigods and the demons, the ocean of milk was so powerfully agitated that all the alligators in the water were very much perturbed. Nonetheless, the churning of the ocean continued in this way. Vasuki had thousands of eyes and mouths. From his mouth he breathed smoke and blazing fire, which affected the demons heated by the Polama, Kalya, Bali, and Ilvala. Thus, the demons who appeared the Sarala trees burned by the forest fire gradually become powerless. यहाँ पे समझ आया आपको? Why had Ajit, the supreme personality of Godhead, shifted? अब सांप को आप उसको खींच रहे हो बार बार करके, and Vasuki had hundreds and thousands of eyes and mouth. From his mouth he was breathing smoke, और वो सारा का सारा जला किसको रहा था? जो लोग आगे खड़े थे उसको खींचते हुए. So Krishna again tricked. Krishna tells in the Bhagavad Gita, I am the greatest of all cheats. So he did. तमन्ना एज यूजुअल साइलेंट रहेगी जैसे उसने लिखा. आगे इसकी बारी है. Because the demigods were also affected by the blazing breath of Vasuki, their bodily luster diminished, and their garments, garlands, weapons, and faces were blackened by smoke. However, by the grace of the Supreme Personality of Godhead, clouds appeared on the sea, pouring torrents of rain, and breezes blew, carrying particles of water from the sea waves to give the demigods relief. When nectar did not come from the ocean of milk, despite so much endeavor by the best of the demigods and demons, the Supreme Personality of Godhead, Ajita, personally began to churn the ocean. The Lord appeared like a blackish cloud. He was dressed with yellow garments. His earrings shone on his ears like lightning, and his hair spread over his shoulders. He wore a garland of flowers, and his eyes were pinkish. With his strong, glorious arms, which avowed fearlessness throughout the universe, he took hold of Vasuki and began churning the ocean, using Mandara mountain as a churning rod. When engaged in this way, the Lord appeared like a beautifully situated mountain named Indranila.
The fish, sharks, tortoises, and snakes were most agitated and perturbed. The entire ocean became turbulent, and even the large aquatic animals like whales, water elephants, crocodiles, and Timingila fish, large whales that can swallow small whales, came to the surface. While the ocean was being churned in this way, it first produced a fi- fiercely dangerous poison called halal. O king, when the uncontrollable poison was forcefully spreading up and down in all directions, all the demigods, along with the Lord himself, approached Lord Shiva, Sadashiv. Feeling unsheltered and very much afraid, they sought shelter of him. The demigods observed Lord Shiva sitting on the summit of Kailash hill with his wife Bhavani, for the auspicious development of the three worlds. He was being worshipped by great saintly persons desiring liberation. The demigods offered him their obeisances and prayers with great respect. The Prajapatis said, O greatest of all demigods, Mahadev, super soul of all living entities and cause of their happiness and prosperity, we have come to the shelter of your lotus feet. Now please save us from this fiery position which is spreading all over the three worlds. Now see the interesting situation that has come right now. शिव जी कहाँ पर थे? हमने क्या पढ़ा अभी? भाविक, शिव जी कहाँ पर थे? कैलाश में कैलाश। कैलाशों के वासी हैं, कैलाश पे बैठे थे शिव जी, है ना, पार्वती के साथ में। और क्या कर रहे थे वहां पे बैठ करके? माला माला तो नहीं लिखा। क्या कुछ पढ़ा था हमने? क्या हो रहा था वहां पे? ठीक है, कोई नहीं, हम नॉट टेकिंग अ टेस्ट। वो बैठे थे वहां पर और सेंटली पीपल दे वर वर्शिपिंग, मतलब सेजेस थे जिनको ग्लोरीफाई कर रहे थे, नॉर्मली बैठे थे, है ना। अब कैलाश सदाशिव के पास में गए हैं और ये जो चल रहा है ये गर्भोदक ओशन में चल रहा है, आई थिंक पूरा का पूरा। और यहाँ पे क्या सिचुएशन है हमने देखा, ये लगे हुए हैं सब मिलके करने को। और नीचे नीचे कौन आए हैं माउंटेन का बेस बनने के लिए? भगवान के Avatar. टॉर्टोइज अवतार। हाँ, क्या नाम बताया भाभी ने उसका? Kurma Avatar. कूर्म अवतार आए हैं करने के लिए। बहुत बड़ा, बहुत विशाल उनका शरीर है, बहुत विशाल ये मंदार माउंटेन है जो चल रहा है। और यहाँ पे दे आर ट्राइंग, व्हाई आर दे डूइंग दिस नक्षत्र? प्रभु जी, they're trying to, मतलब वो अमृत निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अमृत निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ। सुनने में तो एब्सर्ड सा लगता है कि ओशन को चर्न करके अमृत निकलेगा। एनीवेज दे आर डूइंग दिस। मेरे को कुछ का बट डेफिनेटिव आंसर सा नहीं मिला, सो आई विल नॉट गो डीप डाइविंग इनटू दिस। तो वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही ओशन को चर्न कर रहे हैं तो निकलता है सबसे पहले पॉइजन। और पॉइजन निकलता है तो इट इज एकिन, नाउ कंसिडर दिस इज वेरी मच सिमिलर टू अ सिचुएशन जहाँ पे कुछ लोग मिल करके कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। घर में मान लो दो भाई बहन मिलके लग गए हैं कि आज हम कुछ बनाएंगे अच्छा सा, और बनाते बनाते पता चले कि आग लग गई है उसके अंदर। तो व्हाट डू द चिल्ड्रन डू? चिल्ड्रन क्या करते हैं ऐसे में? मम्मी Parents. को बुलाएंगे। मम्मी को बुलाएंगे। मम्मी पेरेंट्स को बुलाएंगे। मम्मी बैठ करके बोल सकती है कि भाई तुम दोनों मिल करके कांड कर रहे हो, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो उसके अंदर, मैं जो कर रही हूँ मेरे को करने दो। सिचुएशन इज वेरी सिमिलर। शिव जी इज वेरी साइलेंटली सिटिंग, उनका कुछ काम धंधा नहीं है इस सबसे क्या चल रहा है। वो बैठ करके आराम से अपना बैठे हैं वाइफ के साथ में, ही इज हैविंग अ गाला टाइम। और यहाँ पर ये लोग मिलके कुछ गड़बड़ कर रहे हैं एंड ही दे कॉल आउट टू लॉर्ड शिवा। शिव जी तो मतलब इज अ वेरी हार्मलेस पर्सन, बैठ करके आराम से तपस्या कर रहे हैं। बट जब उनको ऐसा प्रॉब्लम आया दैट टाइम ही इज कॉल्ड। एंड हमको ऑफ कोर्स पता ही है कि शिव जी का रिस्पॉन्स कैसा है, बट लेट अस ट्राई टू सी
पेरेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाता है एक्चुअल में करना ना, कि पेरेंट्स है तो बच्चे एनीवे, सो वैसे ही में समझते हैं कि बच्चे जो है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको करना चाहिए उनको। बट लेट अस कंसिडर इट फ्रॉम आवर एंगल। दो लोग बैठ करके आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और हमको आ करके बुलाते हैं कि अरे अभी गड़बड़ हो गई है, अभी तुम आ करके सॉल्व करो। द नेचुरल थिंग वुड कम लाइक, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो, लेट मी डू व्हाट यू वांट। मेरी समस्या थोड़ी है कि तुम लोगों ने कुछ कांड कर दिया और अब फंस गए हो जा करके, व्हाई आर यू क्राइंग एंड कमिंग टू मी। कभी कभार तो माँ बाप भी बोल देते हैं, जैसे बड़े हो जाते तो कहते हैं मेरे से पूछा था करने से पहले इसको, तो अब क्यों आ रहा है मेरे पास है। अभी तो मेरे पापा तो बोल देते हैं इसको, आप लोग के पता नहीं अभी बोलते या हैं कि नहीं तोते बोलते। तब क्या? तोते को उठाओ तब भी यही बोलते हैं। हाँ, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। प्रभुपाद जी इन कृष्णा बुक चैप्टर 89, प्रभुपाद जी बताते हैं, ही सेज वंस ग्रेटनेस हैज टू बी, ध्यान से सुनिए इसको, वंस ग्रेटनेस हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। कौन व्यक्ति कितना ग्रेट है उसका एस्टिमेट कैसे होता है, जब प्रोवोकिंग सिचुएशन आते हैं उसको वो कैसे टॉलरेट करते हैं। तो व्यक्ति बड़ा किससे होता है? व्यक्ति बड़ा एज से होता है, व्यक्ति बड़ा बच्चे हो जाते हैं तो बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा पोजीशन बड़ी होती है तो होता है, या फिर उसके पास पैसा ज्यादा है तो बड़ा होता है, या पहुंच बहुत अच्छे कनेक्शन है तो बड़ा होता है। कैसे व्यक्ति बड़ा होता है? शिव जी शोज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ दिस। जब प्रोवोकिंग सिचुएशन आ रहा है, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट एट ऑल इन्वॉल्वड इन सच अ थिंग, उसके बाद भी ही इज लाइक रेडी कि ओके आई ट्राई टू हेल्प। एंड हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज शिव जी रिस्पॉन्स, इट इज जस्ट अमेजिंग। जिस हिसाब से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ही इज सेइंग दिस। आगे पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट कौन है? वारंगी 36 से। मैं पढ़ता हूँ। श्री सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यूड, Lord Shiva is always benevolent towards all living entities. When he saw that the living entities were very much disturbed by the poison, which was spreading everywhere, he was very compassionate. Thus he spoke to his eternal consort Sati. Now, हमने ऊपर पढ़ा था समरी के अंदर कि शिव जी इज वेरी पावरफुल। सती को पता था उनके प्रोवेस के बारे में क्या है। बट क्या होता है ना, जब व्यक्ति बहुत पावरफुल होता है ना, तो फॉर अ पावरफुल पर्सन इट इज लाइक कि उसको मौका मिलता है ना जहां पर अपनी पावर दिखाने का, ही इमीडिएटली शोज दैट, बिकॉज इट नो ही नोज कि लोग रिस्पेक्ट मेरा क्यों करेंगे, बिकॉज ऑफ माय पावर, है ना। तो देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिशंस, है ना। फैशन शोज होते हैं, मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स होते हैं, बॉडी बिल्डिंग के शोज होते हैं, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग, उसके अल्टीमेटली पर्पस क्या है? यू आर शोइंग योर ऑपुलेंस। सोशल मीडिया के ऊपर व्हाट पीपल आर डूइंग, दे आर शोइंग देयर ऑपुलेंस कि हमने कुछ करा है बहुत अच्छा करना। आइडिया बिहाइंड प्रमोटिंग योरसेल्फ, है ना। एक व्यक्ति जो टैलेंटेड है ऑलरेडी और उसको एक इतना अच्छा मौका मिल रहा है अपना टैलेंट दिखाने का, यहाँ पे तो टैलेंट की बात ही नहीं, यहाँ पे तो नीड है, एंड ही इज डूइंग इट आउट ऑफ कंपैशन। तो यहाँ पर भी शिवजी वुड हैव जस्ट गॉन एंड डन दैट ना, बट शिवजी इज शोइंग कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? एक तो बिकॉज देयर इज दिस सेइंग दैट पावर करप्ट्स, पावर ज्यादा आ जाती है तो उसके बाद व्यक्ति करप्ट हो जाता है। उसका एक प्राइम एग्जांपल है हमारे रिसेंट टाइम्स में बहुत फेमस हो गए ये अभय सिंह, जिसको आईटी बाबा के नाम से जाना जा रहा है ना। इनिशियली वाज ऑल गुड व्हेन थिंग्स वर गोइंग गुड, देन ही स्टार्टेड डूइंग एंड सेइंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग। ही वाज सेइंग दैट आई एम गॉड, ये क्रिएशन मेरे से हो रहा है और मैं मैनिफेस्ट होऊंगा कुछ टाइम बाद। एंड ही वेंचर्ड इनटू प्रेडिक्टिंग इंडिया पाकिस्तान का मैच में पाकिस्तान जीतेगी, स्टफ लाइक दैट ना। When you get a lot of fame and you get a lot of power, you think that I can do anything because people are worshipping me, मैं कुछ भी करूंगा बहुत हो जाएगा उससे, people will appreciate। But it requires much more substance to be able to keep your calm, to be able to function nicely, be equipoised when you get name, fame and all of this material stuff। इसलिए
कुंती महारानी जब प्रार्थना करे ना, कुंती महारानी प्रेइंग जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीभी एद मानह मदपुमान। ये चार चीजें क्या है? हाई पेरेंटेज, ऊंचे कुल में जन्म लेना, है ना। अंबानी का, अडानी का बेटा बनना, जन्म ऊंचे कुल में जन्म, जन्म ऐश्वर्य, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ ऑपुलेंस, बहुत ज्यादा ऑपुलेंस मिल गया है आपको, बहुत ज्यादा ऑपुलेंस है तो आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन से एनीथिंग, मैं पैसे से कुछ भी कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। श्रुता, बहुत अच्छा एजुकेशन मिल गया है अगर, है ना, तो फिर घमंड होता है उसका, आई आई एम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, आईआईटी से हूँ, मैंने पीएचडी करी है, मैं एमआईटी से हूँ, दिस काइंड ऑफ थिंग, बहुत इसका घमंड होता है। श्रुता एंड श्रीभी, ब्यूटी, ब्यूटी का बहुत घमंड होता है। जो लोग सुंदर हैं, लाइक मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। तो all these things, what do they do is एद माना मदब उमान, दे इंटॉक्सिकेट अ पर्सन माइंड, और उसको सही से फंक्शन नहीं करने देते। What is शिवजी डूइंग? मेरे को बहुत अमेजिंग लगा। शिवजी is asking for permission from Mother Sati, despite being powerful, despite being so-called man of the house. You see, he does not need to do that, but he's showing that character. है ना, मैं करूंगा, तू क्या कर लेगी? He can say, he can function that way also, है ना। I will do this, मेरे बच्चे हैं, मेरे को सेव करना है, उनको मैं जाऊंगा करना, बट he is very gently asking for permission। और ये हम बहुत उसमें देखते हैं, अगर आप फोर्थ कैंटो पढ़ेंगे, जो शिव सती का संवाद होता है दक्ष वाला, उसके अंदर भी दिस इज कमिंग रिपीटेडली, हाउ जेंटल अ पर्सन इज, सो मच टू लर्न फ्रॉम पीपल। दिस इज रिस्पेक्ट, दिस इज कंसिडरेशन, दिस इज वैल्यूइंग अदर्स ओपिनियंस, ऑनर करना सामने वाले व्यक्ति को। ये नहीं देखना, अब शिव जी को ये भी पता है कि अरे ये मना कर देगी तो दिक्कत हो जाएगी, ये थोड़ी बचा पाएगी, बचाना मुझे ही है। तो in a way, Shivji is much more powerful and the other person is not as powerful as the person is। तो वैसा रहता है कि अरे ये तो मेरे से ज्यादा समझदार नहीं है, ये मेरे से ज्यादा अच्छा सुंदर नहीं है, या मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं, मेरे से ज्यादा केपेबल नहीं है, तो इसके ओपिनियन का क्या मैटर, क्या वैल्यू। शिवजी इज डूइंग दैट, he's respecting। So it's a beautiful lesson in terms of how our relations should be, how families should function। So Shivji is saying, my dear Bhavani, just see how all these living entities have been placed in danger because of the poison produced from the churning of the ocean of milk. It is my duty to give protection and safety to all living entities struggling for existence। Certainly, it is the duty of the master to protect his suffering dependents। गौरांगी आगे पढ़ो 39 से। It is 39. हाँ जी। People in general, being bewildered by the illusory energy of the Supreme Personality of Godhead, are always engaged in animosity toward one another, but devotees, even at the risk of their own temporary lives, try to save them। अगला भी। My dear gentle wife Bhavani, when one performs benevolent activities for others, the Supreme Personality of Godhead Hari is very pleased. And when the Lord is pleased, I am also pleased, along with all other living creatures. Therefore, let me drink this poison, for all the living entities may thus become happy because of me। So Shivji is trying to give logic। Shivji is not showing any power, is not showing any force, is not saying कम बुद्धि वाली है तो तुमको नहीं पता यही करना चाहिए। he is giving logic at this point of time। इतना अर्जेंट क्राइसिस सिचुएशन में कृष्ण इज ऑल्सो डूइंग द सेम डैम थिंग। वहां पे गीता के समय पे वो लोग तैयार खड़े हैं अपना तीर और कमान लेकर के। कृष्ण इज ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड जेंटली, लॉजिक के साथ में, फोर्सफुली नहीं हो रहा है कहीं पर भी। कि मैं जो कह रहा हूं वही है, समझ आ रही है नहीं आ रही? नहीं आ रही तो निकल जाओ मेरे घर से, घर छोड़ करके चले जाओ। इट इज नॉट लाइक दैट। वो समझा रहे हैं लॉजिक को, एंड दिस इज इंट्रीगिंग, टोटली अमेजिंग फॉर मी। मेरे को हाउ डज वन डू दैट? आई एम श्योर कितना ज्यादा स्पिरिचुअल सब्सटेंस, कितना ज्यादा मैच्योरिटी चाहिए होगा इसके लिए। इवन इन द मोस्ट प्रेसिंग सिचुएशन, वो लोग रो रहे हैं सामने और उस समय पे तो नेचुरली रेज आ जाता है, एंड शिवजी इज वेरी जेंटली, जेंटल वाइफ भवानी बोल करके उनको बता रहे हैं। दे सिंग देयरफॉर लेट मी ड्रिंक दिस पॉइजन,
For all the living entities will become happy this way. आगे next. नेक्स्ट किसका है? तो ढीला है यार नक्षत्र तो। Sorry. Srila Sukhdev Goswami continued, after informing Bhavani in this way, Lord Shiva began to drink the poison, and Bhavani, who knew perfectly well the capabilities of Lord Shiva, gave him permission to do so. Thereafter, Lord Shiva, who is dedicated to auspicious, benevolent work for humanity, compassionately took the whole quantity of poison in his palm and drank it. As if in defamation, the poison born from the ocean of milk manifested its potency by marking Lord Shiva's neck with a bluish line. That line, however, is now accepted as an ornament of the Lord. नेक्स्ट। अच्छा पढ़ूं? नहीं और को अगला जो जो It is said that great personalities almost always accept voluntary suffering because of the suffering of people in general. This is considered the highest method of worshipping the Supreme Personality of Godhead, who is present in everyone's heart. Upon hearing of this act, everyone, including Bhavani, the daughter of Maharaj Daksh, Lord Brahma, Lord Vishnu, and the people in general, very highly praised this deed performed by Lord Shiva, who is worshipped by the demigods and who bestows benedictions upon the people. लास्ट। Scorpions, cobras, poisonous drugs, and other animals whose bites are poisonous took the opportunity to drink whatever little poison had fallen and scattered from Lord Shiva's hand while he was drinking. Thank you. I'd like to bring your attention on another interesting point over here. Whenever it comes about doing certain kind of austerity या penance ना, जब भी डिस्कम्फर्ट या पेन लेने की बात आती है तो खुद के लिए लेना आसान होता है ना, बट वो लोग जो हमारे से जुड़े हुए हैं ना, जिनको हम प्रेम करते हैं, जो हमारे से अटैच्ड हैं, हम जिनसे अटैच्ड हैं, जब उन लोगों को पेन लेने की बात आती है ना, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, नहीं हो पाता आसान, स्पेशली फॉर अ वुमन. मदर्स हार्ट इज वेरी काइंड, वेरी सेंसिटिव, बहुत कोमल होता है. उनसे ये नहीं देखा जाता कि मेरे बच्चे ऐसा कर रहे हैं या मेरे हस्बैंड वैसा कर रहे हैं, है ना. वो खुद कर सकती है. मदर लेडी कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ ऑस्टेरिटीज और डिस्कम्फर्ट एट हर लेवल, अपने ऊपर कर सकती है. वो लेट सो करके जल्दी उठना, थकी हुई है फिर भी घर को समेटना, खाना बनाना है, सब करना, सबका ध्यान रखना, वो कर सकती है. नो, बट व्हेन द लेडी ऑफ द हाउस शी गेट्स डाउन, तब लगता है कि घर गया अभी, तो ऐसा रहता है. चाणक्य पंडित सेज एंड प्रभुपाद कोट्स दिस सो ऑफन, गृहिणी गृह उच्यते. गृहिणी होती है तो ही उसको गृह बोल सकते हैं, बिकॉज दैट इज हाउ द मदर फंक्शन. द लेडी, शी सबको एक साथ में समेट करके संजो करके रखती है. वो संजो करके रखना इज अ बेटर वर्ड. हेयर इन मदर सती भवानी is giving permission to Lord Shiva to do so. एबिलिटी पता होता है एक्चुअल में माता को, अपने हस्बैंड की, बच्चों की, वो करेंगे, स्टिल इट इज वेरी डिफिकल्ट. हमें भी पता होता है ना, जैसे हम बोले कि छोटा भाई बहन हो या कुछ हो करने हो, अनलेस एंड अनटिल ज्यादा खुंदस है भाई बहन से तो अलग बात है, बट जब एक्चुअल में कुछ ट्रबल लेने की बात आती है तो थोड़ा सा तो हिचकता है कि नहीं यार, मैंने ट्रबल लिया है, बट उसको क्यों इतना ट्रबल हो उस बात के लिए, है ना. Naturally, that feeling of care is generated inside. Here, Mother Sati is allowing Lord Shiva कि हाँ आप ले लीजिए, पॉइजन होगा थोड़ा सा कोई बात नहीं, बट दिस इज फॉर अ बेटर कॉज. दैट इज आफ्टर ऑल व्हाट लाइव्स आर मेंट फॉर. तो मैंने श्लोका पहले भी कोट किया बार बार. दिस इज वन ऑफ द वेरी होप गिविंग एंड वेरी ब्यूटीफुल श्लोकास ऑफ भागवतम. एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देशु प्राणेरर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा. The benefit, the purpose of human life is by प्राणेर अर्थेर धिया वाचा, अपना लाइफ फोर्स से, प्राण से, अर्थ यानी कि पैसे से, धिया मतलब बॉडी से, और
वाचा मतलब वर्ड से, धिया मतलब इंटेलिजेंस से। ये 4 तरीके से क्या करना है, दूसरों का बेनिफिट करना है, दूसरों का वेलफेयर करना है। Sati, Mother Bhavani understands this very nicely, and because she understands this, therefore she is allowing. You know, she is not being very possessive and attached. अरे इनको क्या हो, इनको ऐसे नहीं हो करना चाहिए। हाँ, सब लोग को लगता है। सुंदर गोपाल तो बताते हैं कि लोग चाहते हैं भगत सिंह हो पर दूसरे के घर से, अपने घर से ना हो, बिकॉज अपने घर से होगा तो बड़ा ट्रबल होगा। वी आस्क फ्रॉम पीपल, राम सुंदर गोपाल तो बताते हैं कि वी शुड हैव मोर सेंट्स जो और प्रचार कर सकें, बट देन वी आस्क देम कि आप अपने बेटे को ब्रह्मचारी बना दो, तो दे से नहीं प्रभु जी, हमारा बेटा नहीं, किसी और का ले लीजिए। इट इज डिफिकल्ट बिकॉज इट इज डिफिकल्ट, वेरी नेचुरल, है ना। बट मदर सती इज अलाउइंग दैट, यस यू गो and you take that thing, you take that suffering on yourself। शिव जी तो एनीवेज बता ही रहे हैं, एंड दिस इज वन ब्यूटीफुल श्लोका। तप्यन्ते लोक तापेन साधवा प्रयासो प्रायसो जना परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः। इट इज सेड दैट ग्रेट पर्सनालिटीज, है ना, हम बात कर रहे थे ना व्यक्ति ग्रेट बड़ा कैसे बनता है। ग्रेट पर्सनालिटीज ऑलमोस्ट ऑलवेज ना, ये एक बार का नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज, मतलब it has become like स्वाभाविक for them, natural, except voluntary suffering। हाँ, प्रभुपाद बताते हैं ना ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी का डेफिनेशन क्या बताते हैं प्रभुपाद भाविक? Voluntarily accepting discomfort for the pleasure of Krishna. हाँ, तो वॉलेंटरी सफरिंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सफरिंग ऑफ पीपल इन जनरल। दिस इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट मेथड ऑफ वर्शिपिंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। सी सच अ ह्यूज स्टेटमेंट। हाईएस्ट मेथड ऑफ वर्शिपिंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड क्या है? इट इज नॉट बैठ करके निरंतर हरि नाम जप करना, या फिर 8 घंटा भागवतम पढ़ना, या इट इज नॉट डीटी वर्शिप करना। व्हाट इज इट? accepting voluntary suffering for the benefit of people who are suffering in general is considered the highest method of worshipping the supreme personality of Godhead, because the supreme personality of Godhead is present in everyone's heart, and that is what we can learn from the life of Lord Shiva, और उसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं कि it is not about ऑल द अदर थिंग एक्सटर्नल्स जिसको आज के टाइम पर लोग वैल्यू करते हैं। लॉर्ड शिवा का अगर आप अपीयरेंस देखें, ही डज नॉट सीम वेरी अट्रैक्टिव ना। आई विल अगेन कोट दिस सॉन्ग नमो नमो शंकरा, उसके अंदर ही इज कोटिंग कि भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाग छाल का है खड़ा उपाओं में। दिस इज द वे ही इज ड्रेस्ड। उनके सर के ऊपर चंद्रमा है, पर यहाँ पे उन्होंने सांप लटका रखा है। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजग इंद्र हारम। भुजग इंद्र उनके गले में, द किंग ऑफ सर्पेंट इज इन हिज नेक, वैसे। और उन्होंने सिर्फ एक वो पहन रखा है, टाइगर स्किन पहन रखा है, और पूरे शरीर पे भस्म है। कभी कभी बताते हैं कि हड्डियों की माला है गले के अंदर, दिस काइंड ऑफ अ थिंग। शिवजी कैन अपीयर स्कैरी टू पीपल एक्चुअली। शिवजी कैन अपीयर वेरी राउडी, वेरी इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू, आई मीन ऑल ऑफ अस। हम लोग तो बड़ा सुंदर सा दिखाते हैं शिव जी को, बट द वे ही लिव्स इज नॉट लाइक दैट, हम लोग को दिखाते हैं। तो विद दैट काइंड ऑफ लुक स्टिल शिव जी इज वेरी अट्रैक्टिव टू लॉट ऑफ पीपल, सो मेनी पीपल। इनफैक्ट लोग कुंभ में जा रहे हैं तो कुंभ में जाने वाले लोग लाइक शिवा फॉलोअर्स, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं गंगा में स्नान करते हुए, समवे और द अदर। शिव जी इज वेरी अट्रैक्टिव, बट ही इज नॉट अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ हिज लुक्स। देन व्हाट इज इट जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हैं? एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इट बिफोर आल्सो, बट अगेन यस, if you look at how or people who have had the biggest impacts in the life, in the history of this planet, they're not people who had the best of looks, not people who had the biggest of kingdoms, not those who had the best of wealth या properties, वो लोग नहीं थे। Even now people who had intelligence, they are respected till now, but they're not respected because they were very intelligent, they are respected because of the works, जो उनके काम थे, उन्होंने समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन लाया है उसके थ्रू।
those works have somehow benefited people या inspired people, encouraged people, तो उसकी वजह से उनका रिस्पेक्ट किया जाता है। तो उसके अंदर भी कॉमन थ्रेड आता है, इट इज काइंडनेस एंड कंपैशन which stands out every single time. एंड हमको बाकी ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वी हैव अ प्राइम एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस in Srila Prabhupada himself. Prabhupada was a 75, 80-year-old man. He was not physically very attractive. He did not have a melodious koyal jaisi आवाज. What was it that attracted 16, 17, 20-year-old hippies who had left everything to Srila Prabhupada? क्या था जिन्होंने उनको अट्रैक्ट किया उनके प्रति? It is that huge heartedness he had. It is that compassion that he was harboring so deep in his heart, that deep love for Krishna and subsequently for all the living beings. It was that genuine feeling of concern that was transmitted, जिसकी वजह से लोग प्रभुपाद से अभी तक अट्रैक्टेड हैं और पीपल आर इंस्पायर्ड। सिर्फ उनका बुक्स पढ़ने से लोगों के लाइफ में रेवोल्यूशन आ जाता है, चेंज हो जाता है। सो मेनी पीपल ने प्रभुपाद जी का कीर्तन सुना है एंड दे हैव लाइक मूव्ड प्रभुपाद जी का कीर्तन सुन करके। इट इज नॉट अबाउट वेल्थ, इट इज नॉट अबाउट द लुक्स, इट इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, neither about strength, जिसकी बहुत वैल्यू होती है आज समाज में, बट इट इज अबाउट दैट पर्सनल कैरेक्टर which you showcase, that इंटरनल क्वालिटीज जो हमको शिव जी में बहुत अबंडेंस में दिखती हैं। सो इट इज दीज थिंग्स which we can learn and which can actually cause people's heart to change. Shivji is also called as, जैसे महाप्रभु को करुणा अवतार बोलते हैं, शिवजी is also called करुणा अवतार। I was hearing केशव महाराज today and he was telling करुणा और कृपा में क्या डिफरेंस है। दोनों का मतलब मर्सी होता है हिंदी में या इंग्लिश में हम उसको ट्रांसलेट करें, बट कृपा मीन्स व्हेन यू आस्क एंड देन यू गेट। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षायति हीना। वी आर सीकिंग मर्सी, बट करुणा इज व्हेन द पर्सन गिव्स इट हिमसेल्फ, सामने से आकर के दे रहे हैं। दैट इज व्हाट लॉर्ड शिवा इज आल्सो डूइंग, albeit to the devotees but also to a lot of people outside who are suffering, who do not know anything, who feel no connection, because the spirituality, Krishna consciousness, it is too pure for them, it is too much to handle। उन लोग के लिए शिव जी is acting as that masiha। so therefore शिव जी is also karuna karpura gauram karuna avataram samsara saram bhujagendraharam, and therefore the devotees spring sada vasantam hridayarvinde bhavam bhavami sahitam namami। I would like to end over here. Thank you so much for hearing and allowing me a chance to glorify Lord Shiva. Uh, yes, any queries, comments, or questions, so we can take it. Otherwise, we'll end with our usual style. Bhavik, Prabhu. मुझे प्रभु जी ये नहीं समझ आया कि जो वो पॉइजन आया था तो उसको जरूरी क्यों था कि कोई पिए इसको, उसको सेफली कहीं कर देते डिस्पोज ऑफ। Hmm. मतलब Good ये question. सिर्फ इसलिए था कि वो उनका थोड़ा ग्लोरिफिकेशन हो सके, उनका प्रोएस डिपिक्ट हो सके, या कुछ। हाँ, तो मैं इसका पॉरपट पढ़ रहा था। इसके पॉरपट के अंदर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो जब डेमीगॉड्स थे ना साथ में सारे, जब पॉइजन निकला तो उस समय पर द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड अजीत वॉज ऑल्सो अलॉन्ग विद देम। तो भगवान है, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ही कैन ऑल्सो टैकल दिस ना, पॉइजन करना, नॉट अ बिग डील, बट दिस थिंग वाज ऑर्केस्ट्रेटेड ताकि शिव जी का ग्लोरीज पता लगे सबको, उनका पता लगे कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज, व्हाट काइंड ऑफ अ वैष्णव इज। तो ये पूरा का पूरा जो पास्ट टाइम था इसी चीज के लिए ऑर्केस्ट्रेट किया था, प्रभुपाद जी पॉरपट में लिख रहे हैं इस बात के लिए। बाकी पॉसिबल तो कुछ भी है, भगवान है तो कुछ भी पॉसिबल है, बट थिंग्स आर डन इन अ सर्टेन वे। थैंक यू। नक्षत्र को प्रभु जी जैसे क्या कहते हैं,
मेरे पास एक, जैसे सारे क्या कहते हैं डेमी गॉड्स जो हैं वो शिव जी को क्या कहते हैं, मतलब वो मेरे पास मतलब दो पार्ट्स हैं इस डाउट के। पहले हम्म तो जब मतलब शिव जी को वो कन्विंस करने जाते हैं तो हम्म भगवान उनके साथ में जाते हैं, मतलब विष्णु उनके साथ में जाते हैं और जाके मतलब वो करते हैं, है ना। तो हम्म जो विष्णु और शिव में रिस्पेक्ट का वो है, वो ऐसा हम्म है कि दोनों के बीच में म्यूचुअल है, या फिर ऐसा है कि मतलब शिव जी क्या कहते हैं उनको मानते हैं और या फिर क्या कहते हैं विष्णु उनको मानते हैं, ऐसा करके है, या फिर दोनों कलेक्टिवली एग्री करते हैं कि विष्णु क्या कहते हैं परमात्मा है और फिर वो शिव जी वो क्या कहते हैं वैष्णव है मटेरियल वर्ल्ड के अंदर। ये ऐसा सिमिलर सा एक केस उसमें रामायण में भी आता है ना, जब वो क्या कहते हैं शिव जी की उसको दिखा रहे होते हैं, शिव जी के धनुष को दिखा रहे होते हैं, उस समय उसकी स्टोरी में भी आता है कि शिव जी और विष्णु जी ने जो धनुष बाण से लड़ाई करी थी। तो मेरा एक तो ये डाउट है। ये दूसरे वाला मैं वो समझ नहीं आया। अच्छा, शिव जी और जैसे विष्णु ने लड़ाई करी। हाँ, उस समय धनुष बाण से करी थी जब सारे देवताओं ने बोला था उन्हें, रामायण हाँ के तो अंदर है ये। ये रामायण में नहीं, महाभारत में आता है ये। बाणासुर के चलते लड़ाई होती है शिव जी और नहीं विष्णु नहीं, की। रामायण में के अंदर भी है जब उन्होंने धनुष बाण से वो करी थी। मैं आपको उसकी फोटो भेज दूंगा बाद में अगर आप चाहते हैं। पर मेरा मतलब क्वेश्चन वो है कि जो रिलेशनशिप है वो म्यूचुअल है, या फिर माना जाता है कि ये क्या कहते हैं विष्णु जी परमात्मा और शिव जी फिर वो आ जाते हैं, वैष्णव आ तो जाते हैं। तो शिव जी नोज एंड शिव जी एक्सेप्ट्स कृष्णा टू बी द सुप्रीम लॉर्ड। वो एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को। और विष्णु उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज ही इज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ अ वेरी बिग थिंग, है ना। सो इट इज लाइक प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्ट्स हिज कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स डियरली, एंड ही होल्ड्स देम डियर, बिकॉज उनको पता है दे आर इंपॉर्टेंट पीपल। तो बोथ ऑफ देम हैव अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जैसे आपने वो वीडियो देखा हो अयोध्या वाला, तो जब वो मोदी जी बैठे हैं और योगी पीछे से उनके उठ करके जा रहे हैं, तो मोदी अलाउ करे कि नहीं आप आगे से जाओ करके। दिस इज रिस्पेक्ट दैट इज बीइंग शोन। अयोध्या के अंदर पहले बोल रहे हैं कि योगी जी आप जा करके बोलो, उसके बाद मैं बोलूंगा रामलला के ओपनिंग के समय पर। दिस काइंड ऑफ थिंग रिस्पेक्ट करते हैं, बट बोथ ऑफ देम अग्री एंड एक्सेप्ट कि हाँ, कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड। एंड प्रभु जी वन मोर क्वेश्चन, क्या कहते हैं जैसे सारे ग्लोरिफिकेशंस करे गए हैं उसके अंदर पार्ट्स हैं जहाँ मेंशन करते हैं कि क्या कहते हैं शिव जी के अंदर से क्रिएशन आता है इस मटेरियल यूनिवर्स हाँ में, और क्या कहते हैं है ना, तो पर कहते हैं कि ऐसे ब्रह्मा जी का की वजह से वो क्रिएशन है। तो आप थोड़ा इसके ऊपर मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे है वो। हाँ, गुड गुड क्वेश्चन। तो ऐसा होता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वैसे जो क्रिएशन है एक तरह से देयर आर डिफरेंट पार्ट्स टू इट। जैसे ऐसा होता है ना कि जिस व्यक्ति की जमीन है, जिसके ऊपर घर बन रहा है, वो व्यक्ति भी कहते हैं कि घर मेरा है। अब जो आर्किटेक्ट है वो भी कह सकता है कि घर मैंने बनाया है। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो एक्चुअल में काम करा रहा है मिस्त्री से, तो वो भी बोल रहा है कि घर मैंने बनाया करके। तो तीनों लोग सही हैं कि घर मैंने, जिसने पैसा लगाया वो भी कह सकता है घर मैंने बनाया है, जब उसकी जमीन है वो नहीं करके। बट वैसे बोल सकते हैं कि घर मैंने बनाया करके, बट उसमें डिफरेंट लेयर्स होते हैं। तो एवरीबडी इज इन चार्ज ऑफ डिफरेंट थिंग, क्योंकि भगवान से सब कुछ आ रहा है, महतत्व और ऑल द डिफरेंट क्रिएशन वाला आ रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि भगवान ने बनाया करके। फिर जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा इज द क्रिएटर। जो ब्रह्मा इज द सेकेंडरी क्रिएटर, बिकॉज जो सारे एलिमेंट्स आ गए हैं ना, ही इज लाइक द कॉन्ट्रैक्टर। तो उससे जो सारे आ गए हैं एलिमेंट्स को करके, ही इज डूइंग दैट। शिवा से क्या होता है, प्रोजनी आता है, मटेरियल सारा। सो व्हाट गुड इज एन एम्प्टी हाउस, बट उसमें सारा जो प्रोजनी डाल रहे हैं, दैट इज द इंटरेक्शन विद शक्ति। जो माया देवी है, माया देवी के साथ में इंटरैक्ट शिवा करते हैं। कृष्णा डज नॉट इंटरैक्ट विद द मटेरियल एनर्जी। शिवा इंटरैक्ट करके वो सारा पॉपुलेशन देते हैं। अब क्यों फिर ये भी आएगा कि हमने सुना है कि पॉपुलेशन ब्रह्मा से आता है एक तरह से, तो वहां पर ऐसा होता है कि ब्रह्मा से शिव जी प्रकट होते हैं। दैट इज अनदर एक्सपेंशन। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसमें हम ज्यादा ना जाएं तो अच्छा है इनिशियल प्रभु जी टाइम्स में। प्रोजनी का क्या मतलब है? प्रोजनी मतलब बच्चे, भाई, लोग, अच्छा, जनता। हिंदी, ओके ओके। जनता जनार्दन जो बसते हैं संसार में। तो ब्रह्मा से शिव जी प्रकट हो रहे हैं, फिर शिव जी से सारी प्रोजनी आ रही है, मतलब संसार पॉपुलेटेड हो रहा है। तो उस तरह से शिव जी आ रहे हैं, इसलिए संसार सारम भी उनको बोला जा रहा है। इसलिए शिव जी बोल रहे हैं कि ये सब तो मेरे बच्चे हैं और मैं उनका मास्टर हूँ, मेरे को प्रोटेक्ट करना है। तो शिव जी इज नॉट सेइंग आउट ऑफ अहंकार, या वो उनको कंफ्यूजन नहीं है कि विष्णु और कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड और मैं तो नहीं हूँ।
बट उनको वैसा है, तो दैट इज हाउ ही सेइंग दैट. आई डोंट नो इफ इट यू गॉट द आंसर, बट यस. समझ गया प्रभु जी, थैंक यू. ठीक है. सो फिर अरे ना, आपके क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं बाद में कभी. अभी हम जस्ट वो कर लेते हैं, एक एक पॉइंट वाला चीज. बावनी से स्टार्ट करते हैं हम. जी मैं एक दो के बाद बोलूंगी. ठीक है, तो भाविक से स्टार्ट करते हैं फिर. वन पॉइंट दैट जस्ट स्टैंड्स आउट दैट कम्स टू योर माइंड, बस वही बोलना है. बहुत सोचना नहीं होता है इसके अंदर. हाँ, मैं वही सोच रहा था. कि नहीं सोचना है कि सोचना है, ये सोच रहे हो आप. मतलब मुझे ये चीज अच्छी लगी कि आ, जैसे भागवतम है, ऑल्दो इट इज अबाउट कृष्णा और उन्हीं का उन्हीं की लीलाएं और उनका गुणगान के लिए बनी है, बट स्टिल उसमें जैसे बोलते हैं कि सभी भगवान की, जैसे एतेचाम कलापुंसम बोलते हैं कि सब उन्हीं की एक्सपेंशंस है, तो उनकी भी आगे हर एक की ग्लोरिफिकेशन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, ताकि उनकी स्ट्रेंथ और उनकी कैपेबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर सके, दिखा सकें. तो ये मतलब ठीक है, अच्छी चीज है ये. ये कैसे पॉइंट है, मैं समझा नहीं. जो ये मतलब सारा वो है, ये सारा लीला उसी के लिए तो हुई ना, आपने बताया कि अ, शिव जी की उसके लिए मतलब कि अजीत भी तो कर सकते थे ये सब, हम्म. बट फिर भी सारा अरेंजमेंट वैसे किया गया और सब लोग शिव जी के पास गए ताकि हम्म. उनकी प्रोवेस और उनकी स्ट्रेंथ, उनकी ग्रेटनेस दिखा सकें, हम्म. और वो कैपेबिलिटी टू हैंडल वो प्रोवोकिंग सिचुएशन को. हम्म. यस. फिर उनकी ह्यूमिलिटी, अपनी मतलब वाइफ को जब सारा कुछ पूछ रहे हैं, तो मतलब एक ही चीज से सारा कुछ शो हो गया. इतनी हम्म. सारी चीजें एक ही तीर से उन्होंने दिखा दिखा दी. हम्म. बिना तीर छोड़े. टैग कर दो भाभी किसी को. अ, रिधिमा. मेरे लिए ये पॉइंट स्टैंड आउट किया कि शिव जी डिस्पाइट बीइंग सो पावरफुल, उन्होंने फिर भी हमली परमिशन मांगी बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, और इतनी अर्जेंट सिचुएशन में भी उन्होंने लॉजिक के साथ शांति से अ, बताया पहले और फिर उनके आंसर का वेट किया, और परमिशन के बाद ही वो एक्ट किया उन्होंने सिचुएशन पे. तो आई विल टैग नक्षत्र. प्रभु जी, मेरे लिए वो बेस्ट पार्ट वो था जो शिव जी का ग्लोरिफिकेशन किया है ना, सारे डेमिगॉड्स ने जाकर और सब एक्सप्लेन किया है कि कौन सा मटेरियल नीचे की चीज क्या कहते हैं, उनके कौन से पार्ट से एमिनेट करती है ना. वो मेरे लिए बेस्ट पार्ट तो वो था. तो क्लास में डिस्कस हुआ ही नहीं. पर वो ये मैंने तो पढ़ आपने लिया. अलग से पढ़ा ना, वो तो मैंने क्लास पढ़ से लिया. बताना है ना आपको. अच्छा, क्लास से बताना है मेरे को. क्लास से मेरा फेवरेट पार्ट होगा कि क्लास से मेरा फेवरेट पार्ट होगा प्रभु जी, जब क्या कहते हैं, जब सारे डेमिगॉड्स एक्चुअली जाते हैं उनके, मतलब पहले जब विष्णु जी उनको बताते हैं कि पेशेंट रहो और क्या कहते हैं उस चीज से तुम्हें डरना नहीं है ना. जब वो जहर निकलेगा तुम्हें उससे डरना नहीं है, और फिर आगे जाके वो टैग कर दो किसी को. प्रभु जी, अगर रुद्राक्षी दी ने क्लास देखी है तो वो. हाँ, क्लास सुनी है मैंने. थैंक यू. यस रजी, तो क्लास वाज गुड, वेरी गुड. एक्चुअली मेरा आई थिंक बेस्ट पॉइंट वाज अबाउट, जब स्टार्टिंग में बता रहे थे अबाउट इंक्लूसिविटी, तो कि हमें सबको इंक्लूड करके रखना चाहिए. whoever is coming, it's like keeping unconditional positive regard about whoever is coming to the moment.
और कभी कभी जैसे हम बहुत डिफरेंशिएट कर देते कि आप शिव जी के भक्त, हम कृष्ण भक्त। उस समय को वो मूवी का कोई सीन याद आ रहा था, कुछ पता नहीं, आई थिंक मैंने कोई मूवी देखी थी जिसमें नारायण की मूर्ति को बाहर लेके जाया जा रहा था, शिव जी के भक्त वर टेकिंग ओवर, ऐसा कुछ। तो ऐसा बड़ा डिफरेंशिएशन रहा है हमेशा से, तो वो नहीं करना चाहिए। हम्म। एंड अबाउट वो वाला पॉइंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि टेकिंग डिस्कम्फर्ट फॉर अदर्स, आई थिंक मतलब मेरे लिए तो वॉलेंटरी डिस्कम्फर्ट अपने लिए लेने के लिए ऑस्टेरिटी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, औरों के लिए तो क्या ही बोलना। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड और बहुत ही हाई लेवल क्वालिटी है, डेवलप करना इज लाइक लॉट ऑफ एफर्ट्स। बट और और मैं कोई हाँ, एक क्वेश्चन था रोजी मेरा कि लाइक आज ही मेरी फ्रेंड जो है, फ्रेंड्स सारे डिस्कस कर रहे थे कि महाशिवरात्रि पे उन लोगों ने व्रत रखा था। एंड लाइक महाशिवरात्रि उनके लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो दे वर आस्किंग मी, जैसे मैं एकादशी व्रत रखती हूँ तो दे आर ऑलवेज लाइक यार तेरा तो हफ्ते में 2 व्रत। और फिर अभी जब वो नित्यानंद त्रयोदशी आई थी तब तो 3-4 दिन हमारा 10 दिन व्रत ही व्रत चल रहा था। तो दे आर लाइक वो पीजी की लड़कियां है तो थोड़ा मेरे लंच पे डिपेंडेंट रहती है। तो दे आर लाइक ओह, व्रत का खाना है, वो चलो आप खा लो। तो इसलिए जो है, तो देवर आस्किंग कि आपने महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखा, तो आई वाज लाइक कि हम तो नहीं रखते। तो आई थिंक मैं जस्ट ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम अपने जितने भी वैष्णव आचार्य का अपीयरेंस से होता है, डिसअपीयरेंस से होता है, तो उनका व्रत रखते हैं, तो अगर वी आर कंसिडरिंग शिव जी टू बी अ exalted Vaishnava, so why are we not fasting for him as well? अमेजिंग क्वेश्चन, मैंने तो किया था आज फास्ट 12 बजे तक तो। आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू। I mean authorities से क्यों नहीं आता, GPC etc. हम्म। लेट्स डिस्कस दिस, उसके बाद में अगर क्लास के बाद में टाइम है तो डिस्कस करते हैं। लेट अस हियर एवरीवन, टैग समवन। Arindam? हाँ, मुझे प्रभु जाएगी लॉर्ड शिवा, मतलब देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम लॉर्ड शिवा। जैसे वो दक्ष प्रजापति वाला भी जो भागवतम में आता है, सिक्स कैंटो में आता है शायद, फोर्थ या सिक्स में, फोर्थ। फोर्थ में या। तो उसके अंदर भी मुझे याद है जब हम लोग हरिद्वार और ऋषिकेश गए थे, वहाँ पे रामादेव रोज ने क्लास लिया था हमारा उसके ऊपर। सो और वैसे भी जनरली भी टेम्पल में हुआ है, तो बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वो सुनने में कि कैसे लॉर्ड शिवा डील्स विथ एवरीथिंग। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। एंड एंड दिस एग्जाम्पल विच इज सेट बाय महाप्रभु, एंड एक्चुअली काफी सारे हमारे आचार्यज हैं, दिस दिस थिंग ऑफ इंक्लूसिवनेस, दैट वी इंक्लूड एवरीथिंग। बिकॉज बहुत सारे फेस्टिवल्स है, जैसे गणेश चतुर्थी भी होता है, या देयर आर मेनी फेस्टिवल्स ऑल्सो। तो कई बार थोड़ा सा रहता है डिवोटीज में। सो बिकॉज बट आई थिंक जैसे रूप गोस्वामी ऑल्सो ही कोट्स लॉर्ड गणेशा इन 2-3 places in Bhakti Rasamrita Sindhu, and वैसे भी। See, once we officially end the class, na, if you are up for a discussion, I would like to have this discussion. Just open discussion. मैं चाहूंगा ये क्लास को एंड कर लेते हैं। अभी पॉइंट बोल लो अपना पहले एक, इंक्लूसिविटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे फिर हम। तो मेरा यही पॉइंट था वो जी। ठीक है, कौन बचा है? बावनी बची है, आशा भी बची है, बावनी को टाटा था। बाबनी को तो एंड में देना है ना, वो सोच रही है अभी भी। तो ये 2-3 लोग थे ना, तो दे अच्छा, देता है। चलो। रोजी, जब वो कृष्णा जो अजीत जो होते हैं वो पहले वो वासुकी का माउथ पकड़ते हैं, और फिर जो डेमंस जब वो बोलते हैं कि नहीं हमें पकड़ना है, तो वो फिर वो बाद का अपना जो फ्यूचर देख के वो बता देते हैं कि वो फिर अपने साइड चेंज कर लेते हैं, तो उनका जो प्लान होता है वो डेमिगॉड्स भी उनको ऐसे फॉलो करते हैं। हम्म। तो वो पॉइंट मुझे अच्छा। हम्म। फ्यूचर देखता नहीं, फ्यूचर तो उन्होंने पहले से देख रखा होता है। ऐसा नहीं वो बैठ हाँ, करके तो ऐसे वो उनको गोला लेकर उनका के आए वो ऐसे प्लान जो सोच होता रहे हैं है ऐसे ऐसे वो करके, फिर उनको दिखाई दिया। डेमिगॉड्स उनका प्लान फॉलो करते हैं हमेशा। हाँ। यस। हाँ, तो ये अच्छी बात है, अगर आपके बीच में कोई समझदार व्यक्ति है तो कई बार उसकी बात सीधा सीधा मान लेनी चाहिए, जैसे डेमिगॉड्स ने मान लिया जीत की बात। आस्था, आस्था बेचारी अकेली रह जाती है, जिसके 10वीं के बोर्ड चल रहे हैं, संडे को भी रह गई थी।
मैं पॉइंट बोलूं? हाँ, हाँ जी। तो सेंस आई कर पा रहे हो आप फ्रस्ट्रेशन? हाँ, हाँ। मतलब थोड़ा बहुत खत्म हो जाएंगे तो आई बी फ्री, फिर आई बी हम्म। हैप्पी। हाँ, तो आई रियली लाइक द वे टेम्परेरी शिवजी प्लेजर है ये संसार का, बाय द वे। आई विल बी हैप्पी। यस यस प्लीज। I really like the point when Shivji was asking for permission because मैंने बहुत बार सुना है लोगों से that in ancient times जो भी सारे मेल होते थे they used to not ask for considerations from their consorts. तो when I read this और अगर मेरे को आगे से कोई बोलता है that नहीं वो तो नहीं मांगते थे या फिर वो डिक्टेट कर, पेट्रियार्कल सोसाइटी नो। हाँ वही, तो फिर इफ समवन सेज दैट टू मी तो फिर आई विल हैव समथिंग टू कोट कि आप ऐसे पढ़ो, देन यू विल सी दैट नहीं ही इज सो जेंटल एंड ही इज सो कंपैशनेट इन हिज डीलिंग्स विद हिज वाइफ। दो उन्हें पता हम्म। है दैट ही इज द पावरफुल वन देयर, बट स्टिल हम्म। आई रियली लाइक दैट पॉइंट। और फिर जो आपने लास्ट में बताया कि इट इज मोर अबाउट इंटरनल्स देन एक्सटर्नल्स, तो मतलब मेरे को रिपीट करना पसंद है ये ताकि मैं इम्बाइब कर पाऊँ, इसलिए वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, सो द क्लास इज ऑफिशियली ओवर।